All right, guys, welcome back to another lecture of टारगेट हाई बुक रिवीजन सीरीज जो कि हमारी 8वां एपिसोड हो चुका है। आज हो जाएगा मतलब, और इसका पार्ट 2 है आज। ठीक है, 8वां एपिसोड हो गया है, पार्ट 1 उसका जो कि आप पढ़ सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी मैंने उसमें कवर कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या कवर करने वाला हूँ, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ठीक है, ये हमारा 8 एपिसोड का पार्ट 2 है जिसमें हम डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कवर करेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट disorder is acute respiratory distress syndrome. In this disorder we have to deal with the distress syndrome. Acute यानी कि short term, maybe treatable somehow. Oh, just 1 minute. Okay, now start. Also called acute ARDS, also called as shock lung or wet lung, etc. ARDS is a severe form of acute lung injury characterized by sudden and progressive pulmonary oh, just a minute, pulmonary edema, hypoxemia, and unresponsive to the oxygen supplementation and the absence of the elevated left arterial pressure. Okay, so these are the symptoms, symptoms and conditions in this disease. And next disorder we have, फर्स्टली पहले इसके साइन एंड सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। और एक लाइन और यहाँ पर लिखी हुई है मैंने कि ARDS occurs due to diffuse alveolar damage and lung capillary endothelial injury. Okay, lungs fail to maintain balance between oxygen and carbon dioxide. Okay, तो यहाँ पर भी हमारा पूरा ध्यान रहे इसको। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स के आगे कहते हैं इसके ट्रैकिकार्डिया, टैकिपनिया, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, accessory muscle used for respiration, crepitious, diminished breath sound. Okay, so these are the signs and symptoms of this condition. Now we understand about management. Management is called mechanical ventilation may be necessary, vasopressor and diuretics as ordered. तो ये सब हम मैनेजमेंट देंगे इस क्लाइंट में। ओके, अब नेक्स्ट वी हैव एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर। ये तो आपने जरूर पढ़ा होगा, हर जगह इसका नाम आता है, इसमें क्वेश्चन भी आते हैं। तो एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर इज कॉल्ड व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन 60 mmHg एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज मोर देन 50 mmHg। तो ये हमारा एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर में आता है। अदर इसकी इटियोलॉजी क्या है, कोजेस वगैरह, कलेक्शन ऑफ सिक्रीशंस इन द लंग्स ड्यू टू कफ सप्रेशन, ब्रोंकोस्पाज्म एंड एयरवे इरिटेंट्स, ये सब इसके इटियोलॉजी है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डिप्रेशन, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी मसल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड चेस्ट वॉल। ओके, endocrine or metabolic disorder, heart failure, gas exchange, pulmonary edema, embolism. So these are the conditions, causes of the acute respiratory failure. and sign and symptom की बात कर लेते हैं। absent breath sound एक्सटेंट हो जाती है इसमें, और crackles and wheezes sound आती है। okay, now we have use of accessories, muscle of breathing. ट्रीटमेंट की बात कर ले तो ऑक्सीजन थेरेपी इसमें प्रोवाइड करते हैं सबसे पहले तो, फिर मैकेनिकल वेंटिलेशन का सपोर्ट होता है, फिर ब्रोंकोडायलेटर्स का होता है सच एज टर्ब्यूटालाइन एंड एल्ब्यूटेरॉन, प्रोपिलराइन और ब्रोमाइड। ये सब हमारे मैनेजमेंट में वर्क होता है इसका। And next we have disorder, write down
It is asthma. So अस्थमा में क्या होता है कि अस्थमा इज अ chronic disease characterized by recurrent attacks of breathlessness and wheezing, shortness of breath and chest tightness. तो इसको राइट डाउन कर लो इसके बारे में थोड़ा सा कि एक रिकरेंट अटैक करता है किसका, ब्रेथलेसनेस एंड wheezing, shortness of breath, okay, and now we have chest tightness. Okay, तो इसमें क्या है कि ड्यूरिंग एन एस्थमा अटैक द लाइनिंग ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब्स that is airway swells causing the airway to narrow, turn more sensitive to irritants in the environment and thus reducing the flow of air into and out of the lungs. तो ये कार्डिक जब अटैक आता है, इसका इस्तेमाल अटैक आता है तो ये सब चीजें होती है, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इट इज प्रोबेबली caused by interplay of hereditary and environmental factors like inherited tendency to develop allergies called atopy, ठीक है. children with eczema or food allergy are more likely to develop asthma that can other children. Two types of asthma, दो टाइप्स का होता है. इसका फर्स्ट होता है एलर्जिक, allergic asthma, that is IgE mediated or extrinsic asthma caused by dust and pollution etc. एंड नेक्स्ट हमारा आता है सेकंड टाइप नॉन एलर्जिक. नॉन एलर्जिक अस्थमा क्या होता है कि इंट्रिंसिक अस्थमा और नॉन आईजीई mediated causes are drug like aspirin, हो गई हमारी, और हमारा आ गया एक्सरसाइजेस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. ओके, नाउ डायग्नोसिस में क्या करते हैं, इसकी मेडिकल हिस्ट्री लेंगे. डायग्नोसिस में हम मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसका एक्सरे करेंगे, चेस्ट एक्सरे. देन वी हैव फिजिकल एग्जामिनेशन. फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद लीवर फंक्शन टेस्ट एलएफटी करेंगे. फिर हम करेंगे हमारा इसका स्पेसिफिक एलर्जन इन ब्लड. ओके, अब देन वी इसके बाद हम क्या करेंगे, salbutamol, levosalbutamol and terbutaline are the utilized to stopping asthma attack. Salbutamol,
levo, salbutamol, and terbutaline, are utilized to stopping asthma attack. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव डिसीज लाइक, इसके अंदर हमारा टाइप्स आ जाते हैं एक्यूट सीवियर एस्थमा एंड स्टेटस एस्थमेटिस एस्थमेटिकस. ओके, तो एक्यूट सीवियर एस्थमा क्या होता है? इट इज एन एक्यूट excavation of asthma that remains unresponsive to initial treatment in bronchodilators. Okay. तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं. इट इज एन acute excavation of asthma that remains unresponsive to initial treatment with bronchodilators. ठीक है. मैनिफेस्टेशंस क्या है इसकी? टैकिपनिया, और सिग्निफिकेंट विजिंग, another disorder we have bronchitis. Bronchitis, it is an inflammation of the mucous membrane of the bronchi. Bronchitis divided into two parts: acute and chronic bronchitis. Acute bronchitis, it's characterized by the feeling of cough, a small sensation in the back of the throat with or without sputum. Chronic bronchitis, it is a type of COPD which involves a cough that produces sputum for 3 months for 2 consecutive years. Okay, main symptoms involve bronchitis is a persistent cough with thick yellow gray mucus, though it may not always be present. Other symptoms of bronchitis may include a tight feeling of chest, breathlessness, wheezing, sore throat, slight fever and chills, headache, blocked nose and sinuses, body ache and pains. Causes Causes are virus or bacteria. Viral bronchitis is much more common. Bronchitis can also be caused by breathing irritant substances such as smoke, chemicals, and household products or tobacco smoke.
For managing acute bronchitis, advise the patient to take rest and the drink plenty of fluids. Headache and body ache can be treated with pain relievers like paracetamol or ibuprofen. Stop smoking or inhaling irritants. For managing chronic bronchitis, there is no cure for chronic obstructive pulmonary disease, but management can help slow the progression of the condition and reduce the symptoms. Smoking should be stopped to avoid further damage to lungs. ओके, तो यहाँ पर ये हमारा ब्रोंकाइटिस खत्म होता है. नेक्स्ट वी हैव द क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज COPD. इट इज़ मोर कॉमन, आपने सुनी होगी, बहुत कॉमन है. COPD is a life-threatening lung disease. It causes chronic obstruction of airway in the lungs. In some cases, the air sacs alveoli get damaged gradually, leading to a condition called emphysema. Pink puffers होते हैं इसमें. In other cases, the airway gets inflamed या फिर irritants बोल सकते हैं हम, leading to a condition called chronic bronchitis, blue bloaters. ओके, तो इसके सिम्टम्स आ जाते हैं हमारे पास. सिम्टम्स ऑफ COPD: शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिस्निया जिसे हम बोलते हैं, विस्लिंग साउंड वाइल ब्रीदिंग, चेस्ट टाइटनेस, कफ विद म्यूकस ऑफन कॉल्ड स्मोकर्स कफ, एंड अनइंटेंटेड वेट लॉस. डायग्नोसिस की बात करें तो डिटेल हिस्ट्री लेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे एंड पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे. इन ABG पेशेंट विल हैव रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. ओके, मैनेजमेंट की बात करें तो इनहेल्ड ब्रोंकोडाइलेटर्स, नेबुलाइजेशन एंड इनहेल्ड और ओरल स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स, ऑक्सीजन थेरेपी, स्टीम इनहेलेशन, चेस्ट फिजियोथेरेपी एंड पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम. एंड चेस्ट फिजियोथेरेपी में गिवन इन मॉर्निंग इज द बेस्ट for the 2 to 3 hours after the food. Management: bronchodilator, mucolytics, corticosteroids, antibiotics. Complications की बात करें, respiratory infections such as cold, flu and pneumonia, high blood pressure, heart problems including heart attack and right side heart failure, lung cancer, depression, etc. These are the complications arises in the क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज. एंड डायग्नोसिस हो गया, मैनेजमेंट हो गया और चेस्ट फिजियोथेरेपी हो गया. ओके, नेक्स्ट वी हैव निमोनिया. निमोनिया इज द इन्फ्लेमेशन या फिर स्वेलिंग कह सकते हैं ऑफ द टिश्यू इन द वन और बोथ लंग्स, एक या दोनों लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो जाना. इट इज़ अ कंडीशन विच प्राइमरीली अफेक्ट्स द लंग पैरेन्काइमा, एल्वोलाई, एल्वोलर डक्ट्स एंड ब्रोंक्यूल्स. ये हमारा सबसे पहले इसमें अफेक्ट होता है. कॉजेज़ की बात करें तो इसके कॉजेज़ में इन्फेक्शन एंड वायरसेस और बैक्टीरिया एंड लेस कॉमनली अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सर्टेन ड्रग्स. मोस्ट कॉमन कॉज इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो कि इसका कॉज है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. एंड टाइप्स की बात करें तो इसमें 2 टाइप्स आते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया एंड कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया. हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया डेवलप्ड 48 to 72 hours आफ्टर एडमिशन इनटू हॉस्पिटल. हॉस्पिटल में एडमिशन के बाद 48 से 72 घंटे में वो हो सकता है. एंड कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया इज मोस्ट कॉमनली अकरिंग. ठीक है, रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो इसमें क्या आता है कि प्रीवियस फ्लू और कोल्ड से हो सकता है, वीकेंड इम्यूनिटी हो सकती है, उसकी वजह से हो सकता है, एल्डरली और इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी, COPD एंड कफ डिप्रेशन, पोस्ट OP या फिर इमोबिलिटी एक्सेट्रा. ये सब रिस्क फैक्टर हो सकते हैं. ठीक है, कॉमन सिम्टम्स इसके डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होती है जिसे हम बोलते हैं टेकीकार्डिया, फीवर. नहीं, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग को टेकीकार्डिया नहीं बोलते. इसमें जो कॉमन सिम्टम्स आते हैं वो डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग आता है और टेकीकार्डिया आता है एंड फीवर आते हैं, स्वेटिंग आती है एंड शिवरिंग होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, पेन इन चेस्ट होता है. पर्सन में ऑल्सो हैव
इटाइसिस, हेडेक, फटीक, नोजिया एंड वोमिटिंग्स। एंड डायग्नोसिस की हम बात करें तो हमारे पास ऑस्कल्टेशन में रिवील क्रैकल्स, ब्रोंकाई, चेस्ट एक्सरे एंड स्पुटम कल्चर, ये सब हम डायग्नोसिस करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में समटाइम्स रिवील लो ब्लड प्रेशर एंड लो ऑक्सीजन सेचुरेशन, इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट एंड हार्ट रेट में बी फाउंड। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, सिंपल पेन किलर्स देंगे, एनाल्जेसिक्स लाइक आइब्रूफेन एंड एंटीबायोटिक्स। एंड कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद निमोनिया आर पल्सरी एंड स्पेटिसीमिया। ओके, तो ये लिख लो आप, प्लूरेसी एंड स्पेटिसीमिया। ओके, एंड स्पुटम कलर की बात करें तो हम स्पुटम कलर में हमारे पास रस्टी ब्राउन एंड रेड करंट जेली, ग्रीन, ब्लैक, ये सब हमारे स्पुटम कलर होते हैं। अगर स्पुटम कलर रस्टी ब्राउन है तो न्यूमोकोकल एजेंट होगा, एंड रेड करंट जेली है तो क्लेबिसिला होगा, एंड ग्रीन होगा तो सीडोमोनास होगा, एंड ब्लैक होगा तो एलर्जिक ब्रोंकियो पल्मोनरी एस्परजिलोसिस ABPA ये होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्वाइन फ्लू की। स्वाइन फ्लू में हम स्वाइन फ्लू इज ऑल्सो नोन एज स्वाइन इन्फ्लुएंजा और पेंडेमिक इन्फ्लुएंजा इज अ रेस्पिरेटरी डिसीज। कोजेज क्या है इसकी, H1N1 वायरस इसका कोजेज है, H1N1 वायरस। ओके, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था 2009 में। दिस वायरस इन्फेक्ट द विंड पाइप, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और पिग्स एंड लेटर इट गेट्स ट्रांसमिटेड इनटू ह्यूमन बींग्स। सबसे पहले इसने क्या करता है, ये वायरस अफेक्ट करता है विंड पाइप को और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ पिग्स को करता है, उसके बाद ये ट्रांसमिटेड हो जाता है ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, मैनिफेस्टेशन की बात करें तो नेजल सिक्रीशंस, कफ, डिक्रीज एपिटाइट एंड रेस्टलेस बिहेवियर होता है इसमें। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 1 to 4 डेज का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। 1 to 4 डेज। ओके, अब नेक्स्ट वी हैव सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। सिम्टम्स इसमें क्या क्या आते हैं कि सिमिलर टू इन्फ्लुएंजा, फ्लू, फीवर, हेडेक, रनिंग नोज एंड सोर थ्रोट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और कफ, लॉस ऑफ एपिटाइट, डायरिया और वोमिटिंग इसके सिम्टम्स आते हैं। स्वाइन फ्लू कैन बी स्प्रेड टू अदर्स अप टू अबाउट 6 फीट अवे, 6 फीट अवे अगर कोई दूर है उसको भी स्प्रेड हो सकता है। द फ्लू वायरसेस आर स्प्रेड मेनली बाय ड्रॉपलेट्स वाइल पीपल विद फ्लू कफ, स्नीज और टॉक। ठीक है, अब हम इसकी डायग्नोसिस की बात कर ले हैं तो डायग्नोसिस में क्या क्या होता है इसकी। डायग्नोसिस में थ्रू पेशेंट्स हिस्ट्री एंड सिम्टम्स, कन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं हमारे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, RT-PCR जिसे बोलते हैं। मैनेजमेंट की बात करते हैं तो जाना मीवर, रिलेंजा एंड ओस्टीमीवर टेमीफ्लू, ये हमारे कन्फर्मेटरी मैनेजमेंट के काम में आते हैं। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस इज टू प्रैक्टिस गुड हाइजीन। वैक्सीनेशन अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा हैज़ द सेम रोल। ठीक है, ये सब हम इसके प्रोटेक्टिव मेजर्स जो है इसमें वर्क करेंगे। नेक्स्ट वी हैव द डिसीज एटीलेक्टिस, a collapsed or airless state of the lungs which may be acute or chronic and may involve all or two part of the lungs। ठीक है, it may be form from imperfect expansion of pulmonary alveoli at birth जिसे congenital हम बोल सकते हैं, or as the result of
डिसीज और इंजरी। ओके, फीचर्स इसमें क्रैकल्स, टैकिकार्डिया, टेकिपनिया एंड फीवर्स होते हैं। मैनेजमेंट की बात कर लें तो ब्रोंकोडायलेटर्स एंड एंटीबायोटिक्स आर यूज टू फॉर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इसमें हमारा ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक और ये ब्रोंकोडायलेटर्स चलता है। अब हम बात करते हैं एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा द एबनॉर्मल प्रेजेंस ऑफ एयर इन द टिश्यू और कैविटीज ऑफ द बॉडी, इसको हम एम्फाइसीमा बोलते हैं। अब एम्फाइसीमा में जैसे पल्मोनरी एम्फाइसीमा, एक क्रोनिक डिसीज ऑफ लंग्स, डिस्टेंशन ऑफ एल्वेलाई causes intervening walls to break down and bullae to form on the lung surface. It also causes distension of the bronchioles and eventual loss of elasticity, so the inspired air cannot be expired, making breathing difficult. ठीक है, एंड सर्जिकल एम्फाइसीमा में क्या होता है कि द प्रेजेंस ऑफ एयर और एनी अदर गैट्स in the subcutaneous tissue introduced through a wound and evidenced by crepitation on pressure। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कोर पल्मोनेली की बात कर लेते हैं। कोर पल्मोनेली, इसमें क्या होता है कि कोर पल्मोनेली इज डिफाइंड एज एन अल्टरेशन इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द राइट वेंट्रिकल्स caused by a primary disorder of respiratory system. Pulmonary hypertension is common link between lung dysfunction and the heart in core pulmonale। Okay, अब नेक्स्ट वी हैव इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा की बात कर लेते हैं। इन्फ्लुएंजा कंडीशन caused by RNA virus and is commonly called as flu, इसको हम फ्लू बोलते हैं। There are three types of influenza virus that can all affect humans, जैसे इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी एंड इन्फ्लुएंजा सी। तो साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसके साइन एंड सिम्टम्स में इसके कोल्ड एंड कफ, मसल पेन एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ये हमारे साइन एंड सिम्टम्स आते हैं इन्फ्लुएंजा में। प्लूरल इफ्यूजन की बात कर लेते हैं। प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है कि ए प्लूरल इफ्यूजन is the abnormal accumulation of fluid in the pleural space. Accumulation of blood is known as hemothorax and accumulation of air is known as pneumothorax. Okay, the normal amount of pleural fluid is approximately 0.5 ml per kg or 10 to 20 ml, and these fluids serve in serve to lubricate the pleural surface and allow a smooth movement during breathing। Okay, the movement of pleural fluid is based on Starling's principle, which involved the balance of hydrostatic and oncotic pressure across the capillaries and pleural membranes। Okay, if the amount of fluid exceed to 50 ml, it can cause a mediastinal shift, which refers to the displacement of mediastinal structure towards the unaffected lungs। Okay, the two types of pleural infusion, इसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास exudative effusion caused by obstruction of blood vessel of lymph nodes and infection, inflammation, tumors, high concentration of protein, yellow in color। Okay, then second आता है हमारे पास transudate effusion caused by non-inflammatory condition like heart failure, liver or renal disease, low protein count, clear in appearance। Okay, and 1000 to 1200 ml fluid can be removed at one time। Now we have pneumothorax। Pneumothorax accumulation of air in pleural space। Normally pleural space remains negative 4 mm per Hg, but during pneumothorax it becomes positive। Most common cause blunt trauma causes flail chest, blunt trauma causes flail chest and paradoxical respiration, inward movement of ribs during
Inspiration and outward movement during expiration is one of the common clinical manifestation of filial chest. Filial chest इसको बोलते हैं filial chest, FLIAL, filial chest. Okay. Types of pneumothorax. टेंशन pneumothorax. फर्स्ट हमारा टेंशन pneumothorax ओपन एंड क्लोज. तो टेंशन pneumothorax में एयर एंट्री टू प्लूरल स्पेस बट कैन नॉट एक्सपेक्ट एस्केप्ड, मतलब बाहर नहीं निकलती. ठीक है. ओपन pneumothorax एंड एयर एंट्री ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड मूव आउट ड्यूरिंग एक्सपायरेशन. इट इज ऑल्सो नोन एज शकिंग चेस्ट वुंड. And third is closed pneumothorax. Air entry is to pleural space and some amount got trapped. Posterior and mid scapular line is the preferred site for okay. Posterior mid-scapular line is the preferred site for thoracocentesis procedure performed in the upright or seated position. Okay. तो ये सब हमारा इसमें होता है pneumothorax में. Then we have pulmonary edema. Pulmonary edema excess fluid in the lungs and alveoli. Alveoli और lungs के अंदर excess fluid आ जाना, that is called pulmonary edema. Causes की बात कर लेते हैं तो left sided heart failure, mitral stenosis, ARDS, fluid overload, myocardial infarction or pulmonary emboli. It is a sign and symptoms and causes for the pulmonary edema. And now we have talking about pulmonary embolism. So firstly, define definition. Obstruction of pulmonary artery or its branches by thrombus, tumor, air or fat that originates elsewhere in the body. Acute PE, acute pulmonary embolism. In a massive PE, pulmonary embolism, there is reduction of blood pressure below 90 by 40 mmHg in less than 15 minutes. And saddle pulmonary embolism, embolus lodges at the main pulmonary artery by fructation. Okay, sign and symptoms: tachypnea, tachycardia, crackles, low sound, hard sound, S2. Okay, raised jugular venous pressure, dyspnea, dyspnea at rest or with excretion, pleuritic pain, cough or thigh pain, cough, ऑर्थोपेनिया, विजिंग. मैनेजमेंट की बात करें तो एंटीकोगुलेंट, हिपेरिन एंड वारफरीन, ये सब हम मैनेजमेंट में देते हैं. तो इसके हमने एक्यूट एंड सैडल एंड साइन सिम्टम कर लिए हैं. नेक्स्ट वी हैव ट्यूबरक्लोसिस. ट्यूबरक्लोसिस को सारा जहाँ जानता है भाई, तुम भी जानते होगे. ट्यूबरक्लोसिस और टीबी इज एन इन्फेक्टियस bacterial disease caused by Mycobacterium tuberculosis, which most commonly affect the lungs. It is transmitted from person to person via droplets from the throat or lung of people with the active respiratory disease. Okay. Risk factor इसके immunosuppression, HIV infection, alcoholism, living or in crowded area, malnutrition, lower socio-economic status and other older adults. Okay. Mode of spread इसका ड्रॉपलेट्स के थ्रू रहेगा, ड्रॉपलेट्स के थ्रू. ठीक है. रिस्क फैक्टर भी कर लिया हमने इसके, ड्रॉपलेट्स के थ्रू होगा. इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 12 वीक तक रहेगा. ओके. एंड देन हमारे पास एक्टिव टीबी इन्फेक्शन अकर्स years after the exposure or when the person becomes immune compromised is known as latent infection. Okay. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम कफ, फीवर, इंक्रीज वेट लॉस, ओके, नाइट स्वेट,
and hemoptysis, anorexia, weight loss, chills, fever, chest pain। ठीक है, डायग्नोसिस की बात करें तो मेंटोक्स टीबी स्किन टेस्ट कराते हैं। स्टैंडर्ड डोज ऑफ 5 tuberculin unit is injected intradermally. The reaction is read 48 to 72 hours later by measuring the diameter of induration, palpable, raised, hardness, hardened area. Chest X-ray, sputum smear for acid fast bacilli, a positive culture of mycobacterium tuberculosis। एंड ट्रीटमेंट की बात करें तो हम डायग्नोसिस हो गया, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गया, ठीक है, ट्रीटमेंट पाए जाते हैं। ट्रीटमेंट रेफर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सिनॉप्सिस फॉर डिटेल ऑन एटीटी ड्रग्स एंड पोस्ट एक्सपोजर prophylaxis is done with ionized for 9 to 12 months. In active TB cases, ionized with rifampicin is usually the first choice, and other antituberculotic include ethambutol and pyrazinamide। Okay, these are the drugs and include in the treatment। And now we have lung abscess, aspiration or entry of infectious material in the lung causes collection of purulent material in the lung parenchyma and leads to cavity formation। causes की बात कर लेते हैं इसके, तो aspiration following pneumonia, chest trauma। in a bedridden patient, lung abscess most commonly occurs in the posterior segment of the upper lobe and superior part of the lower lobe। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो प्रोडक्टिव कफ, फाउल स्मेलिंग, स्पूटम, फीवर, एनोरेक्सिया एंड वीकनेस, वेट लॉस। ओके, दीज आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। ठीक है, एंड नाउ वी हैव डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में हम बात करते हैं तो सीटी, एक्सरे, फिजिकल असेसमेंट, शो प्लूरल फ्रिक्शन, रब, क्रैकल्स। मैनेजमेंट में बात करते हैं तो एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, चेस्ट फिजियोथेरेपी देंगे एंड पोस्टरल ड्रेनेज एंड लोबेक्टोमी इफ इज द सर्जरी ऑफ चॉइस। ठीक है, नाउ वी हैव चेस्ट इंजरीज। चेस्ट इंजरीज में हमारे चेस्ट इंजरीज क्या होती हैं? ब्लंट और पेनिट्रेटिंग इंजरीज टू चेस्ट, लंग्स, रिब्स, हार्ट, ग्रेट वेसल्स, ट्रैकिया and esophagus। ribs fracture, hemothorax, filarial chest, pulmonary contusion and cardiac tamponade and are different type of chest injuries। फर्स्टली हमारी है रिब्स फ्रैक्चर। रिब फ्रैक्चर्स में क्या होता है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ चेस्ट इंजरीज विच कॉजेज न्यूमोथोरैक्स एंड पल्मोनरी कंटूशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो इसमें स्प्लिंटिंग ऑफ चेस्ट, पेन इंक्रीज विद इंस्पायरेशन, शैलो रेस्पिरेशन एंड टेंडरनेस एट इंजरी साइट। मैनेजमेंट में पेन मैनेजमेंट एंड फाउलर्स पोजीशन टू द क्लाइंट। ओके, एंड हीमोथोरैक्स में ब्लड इन द प्लूरल स्पेस, चेस्ट ट्यूब इंसर्शन इन द मैनेजमेंट। इसमें चेस्ट ट्यूब इंसर्शन करते हैं मैनेजमेंट में। अब फ्लैलल चेस्ट होता है जो, ये क्या होता है? अकर एज अ रिजल्ट ऑफ चेस्ट ट्रॉमा, वन पोर्शन ऑफ द चेस्ट लूजेस इट कनेक्शन विद रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिब केज। ओके, पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन कैन बी सीन इन दिस कंडीशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सीवियर पेन, डिस्निया, साइनोसिस, टैकीकार्डिया और हाइपोटेंशन होगा। मैनेजमेंट में क्या करते हैं? फाउलर पोजीशन देते हैं, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, रेस्पिरेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इफ़ नीडेड एंड पेन मैनेजमेंट करते हैं। अब हमारा आता है पल्मोनरी कंट्यूशन, लीकेज ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड इनटू एल्वोलाई एंड इंटरस्टिशियल स्पेस। और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो डिक्रीज ब्रीथ साउंड, डिस्निया, हाइपोक्सीमिया, हीमोपटाइसिस और रेस्टलेसनेस। ओके, एंड मैनेजमेंट की बात करें, फाउलर पोजीशन देंगे, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स में क्या करते हैं? ट्रैपिंग ऑफ
atmospheric air in the pleural space, which leads to increase intrathoracic pressure and decrease vital capacity. तो इसके मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं कि फाउलर पोजीशन दे देते हैं, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कर देते हैं, चेस्ट ट्यूब इंसर्शन करते हैं. अब नेक्स्ट वी हैव ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज. ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज में हमारा एक तो ऑर्गेनिक डस्ट आता है, एक इनऑर्गेनिक डस्ट आता है. तो ऑर्गेनिक डस्ट में कॉटन डस्ट होता है, तो बिस्नोसिस होती है, एंड शुगर केन डस्ट होता है तो बैगोसिस होती है, सिसोसिस होती है, और ग्रेन डस्ट और हे होता है तो फार्मर्स लंग बोलते हैं. एंड नेक्स्ट वी हैव टबैको, तो इसको टबैकोसिस बोलते हैं. एंड इन्फेस्टेड वीट होता है तो वीट विली बोलते हैं. एंड इनऑर्गेनिक डस्ट में आ जाते हैं तो सिलिका होता है तो सिलिकोसिस बोलते हैं. एंड एब्स्टोस्ट होता है तो एब्स्टोसिस बोलते हैं. आयरन होता है तो स्लाइडोसिस बोलते हैं. कोल डस्ट होता है तो एंथ्रोसिस बोलते हैं. So these are the respiratory system complete disorders I have covered in this lecture. And previous lecture I have covered the anatomy and physiology, and all the lectures from starting of MSN in the Target High book I covered the theory part only. And